Hello, Bacho. Welcome back. This is episode 2. We'll start the story. So Suraj had got back firewood. The fish granted his wish of firewood. Oh, that's poetry. Fish granted his wish. Interesting. So now we start ahead. So his wife said, there's no point having firewood. I need something more. Now we start. Suraj trudged back to the seashore and called out to his little fish friend. There was a flash of light in the dark waters, and the fish came swimming up right in front of him. Suraj joined his palms and said very politely, "Oh, little golden fish, my wife is not satisfied with just firewood. She has told me to ask you for some food as well." So सूरज ट्रज्ड बैक मतलब धीरे धीरे वापस गया सी शोर समुद्र तल पे और फिर से उसने अपनी मछली को बुलाया, मछली फ्रेंड को बुलाया। एक लाइटनिंग का फ्लैश हुआ, एक बिजली चमकी और पानी में से मछली फिर से आई। सूरज ने अपने हाथ जोड़ के उससे बहुत विनम्रता से बोला, ओ लिटिल गोल्ड फिश। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ओ छोटी सुनहरी मछली, मेरी पत्नी अभी सिर्फ लकड़ी से संतुष्ट नहीं है और उसने मुझे बोला है कि आपसे और खाना भी मांगने के लिए। The fish leapt, did a little twirl in the air and said, "So be it." Then it was gone in the twinkling of an eye. तो मछली कूदी, एक छोटा सा ट्वर्ल क्या होता है? ट्वर्ल होता है ऐसे, ये ट्वर्ल होता है। तो ऊपर आई और ऐसे घूमी और उसने इमीडिएटली उसको बोला ठीक है। Suraj hurried back home and sure enough, his house was full of sacks of food grain, enough to last them for many months. Lakshmi too looked happy and for a few days there was peace in the house. Then one day Lakshmi had to go visit her friend in the next village. As she took out her 2 good saris from the cupboard, she complained loudly, "What can we do with only grains? How can they make us look good? Just see this tattered old sari." तो सूरज जल्दी जल्दी घर गया और जैसा सोचा था उस घर में बोरी भर के खाना था, खूब खाना था और कई महीनों तक उनके लिए खाना था। लक्ष्मी भी खुश थी और कुछ दिन घर में शांति थी, पीस इन द हाउस, घर में शांति थी। फिर एक दिन लक्ष्मी को अपने फ्रेंड के यहाँ जाना था, टू विजिट हर फ्रेंड इन द नेक्स्ट विलेज। पड़ोस के गांव में फ्रेंड के यहाँ जाना था और जैसे ही उसने 2 अच्छी साड़ी निकाली अलमारी में से, उसने जोर से बोला, "अब हम खाने का क्या करेंगे? इससे हम पहन थोड़े सकते हैं। ये देखो मेरी फटी पुरानी साड़ी, टैटर्ड ओल्ड साड़ी। Just see this tattered old sari I'm wearing. My friend will laugh when she sees me wearing it. Go and ask your fish for some grand clothes for us." कहती है, देखो मेरे सब फ्रेंड हंसेंगे, मेरे सब दोस्त हंसेंगे जब मुझे ऐसे फटी पुरानी साड़ी देखेंगे। जाओ अपनी मछली को बोलो हमारे लिए बढ़िया कपड़े के लिए। Suraj knew he could not argue with his wife, so he walked to the sea and called out to the golden fish. Again the fish appeared as soon as Suraj called, and when he asked for new clothes, it did a twirl in the air and granted the wish. For a few days Lakshmi was happy and had a wonderful time at her friend's house, showing off her shiny new saris. तो अब आप देखो इस स्टोरी में रिपीट हो रहा है, वो जाता है, उसकी वाइफ फिर खुश नहीं होती, वो वापस जाता है। अब क्या मांगती है? तो जो वापस जाता है तो फिर समुद्र में जाता है, फिश को बुलाता है, फिर फिश आती है और सूरज बोलता है, "प्लीज़ अब मुझे नए कपड़े दे दो।" फिर वो एक ट्वर्ल करती है हवा में, ट्वर्ल का मतलब बता दिया था, और उसकी तमन्ना पूरी करती है। फिर कुछ दिन तक लक्ष्मी खुश हो जाती है और अपने दोस्त के यहाँ अपने नए नए कपड़े दिखा के खूब खुश रहती है, शोइंग ऑफ हर शाइनी न्यू साड़ीज। उसकी चमकती हुई नई साड़ी अपने दोस्त को दिखाती है। देन शी बिकेम ग्लूमी अगेन। "What is the use of food, clothing and wood? We require a better house. Go and ask your fish for it," she told her husband. तो कुछ दिनों बाद वो फिर दुखी हो गई, कहती ये खाना,
कपड़ा, लकड़ी, इससे क्या फ़ायदा? जाओ उसको बोलो हमें एक अच्छा घर भी चाहिए। सूरज did as she asked and the fish granted him this wish as well. After some time, Lakshmi thought of another demand. Ask the fish to give us plenty of gold so that we need not ask for anything again. फिर लक्ष्मी ने बोला, अब मछली को बोलो हमको खूब सारा सोना देगी ताकि बाद में हमें किसी से कुछ ना मांगना पड़े। गोल्ड, सोना। This time too her wish was fulfilled. Suraj was also happy. He would not have to come to the sea anymore and beg the fish for different things. But Lakshmi could not rest. Now they had a huge house, pots of gold. She became scared that thieves would come and steal everything. तो इस बार भी उसकी तमन्ना पूरी हुई। सूरज भी खुश था, उसे भी लगा कि ठीक है अब कुछ दिन तक लक्ष्मी कुछ नहीं मांगेगी। लेकिन लक्ष्मी को डर लग गया क्योंकि उनके पास ह्यूज हाउस, एक बड़ा घर था, पॉट्स ऑफ गोल्ड, पॉट भर के सोना था। तो उसको डर लगा कि अब थीव्स, चोर आ जाएंगे और सब कुछ चोरी कर लेंगे। Do you have any sense or not? She shouted at her husband. What if we are attacked by robbers at night? We will lose all this hard-won wealth. Go and tell your fish to do something so that no one ever dares to come near us or tries to steal from us. कहती तुम्हें कोई अक्ल है कि नहीं? अपने हस्बैंड को जोर से बोलती है। क्या अगर यहाँ पे रॉबर मतलब चोर आ जाएं और हमें सारा धन दौलत गंवा बैठे तो जाओ अपनी मछली को बोलो कि कुछ ऐसा करे कि हमारे पास कोई आए ना। Poor Suraj went again to the seashore and called out to the fish. As had happened earlier, when the fish appeared, Suraj told the fish what he wanted in exactly the words his wife had used. This time too, the fish leapt up and dived back into the water after granting the wish. बेचारा सूरज फिर गया समुद्र तल पे और मछली को बुलाया, और जैसे पहला हुआ था मछली आई। सूरज ने मछली को ठीक वैसा ही बताया जैसे उसकी वाइफ ने बोला था, और इस बार हर दफ़ा की तरह इस बार भी मछली उछली और उसकी तमन्ना पूरी करके वापस चली गई। Slowly Suraj walked back home, wondering what would happen to them. As he neared his house, he noticed a strange, hairy, demon-like creature standing near the door. तो धीरे धीरे सूरज वापस गया, सोच रहा था अब क्या होगा हम लोगों का। जैसे घर के पास आया उसने देखा एक अजीब बालों वाला राक्षस टाइप का कुछ खड़ा हुआ था उसके दरवाजे के सामने। इट वॉज बिग विथ मस्क्यूलर आर्म्स, 2 horns on its head, long nails on its fingers and huge teeth. वो बड़ा था, उसकी भुजाएं उसकी मसल्स थी भुजाओं में, 2 सींग भी थे सर पे, लंबे लंबे नाखून और बड़े बड़े दांत। When it saw him, it came rushing up. To his horror, Suraj realized Lakshmi had been transformed into a fearful demon. Now no one would ever dare to come near them or try to steal their gold. और जैसे ही वो जो राक्षस पास आया उसने देखा अरे ये तो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी ही राक्षस बन गई थी। अब उनके पास कोई नहीं आएगा उनका सोना चुराने। Lakshmi stood in front of him and burst into tears. Your fish has played a trick on us. It has made me look like this so that no one will want to be near me. Hurry, don't just stand there. Go and tell him to turn me back into the way I was. लक्ष्मी फूट फूट के रोई, देखो तुम्हारी मछली ने कुछ हमारे ऊपर छल कर दिया है, मेरे को ऐसा राक्षस जैसा बना दिया है कि अब हमारे पास कोई नहीं आएगा। जल्दी जाओ उस मछली को बोलो प्लीज़ मुझे वापस लक्ष्मी बना दे। ये रे लक्ष्मी। Suraj ran all the way to the sea. Then he called and called, requesting his little golden fish friend to come out. But it did not appear. No one saw the fish or Suraj ever again, and greedy Lakshmi remained a demon till the day she died, a rich old woman but with no friends. ये रही लक्ष्मी और ये रहा सूरज, बहुत तेज़ भाग रहा है एज यू कैन सी। ये स्टोरी ख़त्म हुई। अब हम थोड़ा वर्ड मीनिंग पे चलते हैं।
कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। फिश लेफ्ट कूदी, स्विमिंग तैरना, पीस शांति, फ्रेंड दोस्त, कबर्ड अलमारी, टैटर्ड फटी पुरानी, ग्रैंड क्लोथ्स अच्छे कपड़े, ट्वर्ल इन द एयर वही चीज़ हवा में, ट्वर्ल जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, शाइनी न्यू साड़ी चमकती हुई नई साड़ी, ग्लूमी दुखी परेशान, फुलफिल्ड उसको पूरा करना, थीव्स चोर, स्टील चोरी करना, शाउटेड चिल्लाना, वेल्थ धन दौलत, लीप्ड अप फिर से उछलना, रशिंग अप जोर से दौड़ के पास आना, हॉरर हॉरर मतलब डर जाना, बर्स्ट इनटू टीयर्स फूट फूट के रोना, और ये तो डेमन है ही, और ग्रीडी लालची, रिच अमीर। ये तो बच्चों ये थी कहानी, और इसमें से कुछ सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है ये आप सोच के मेरे को लिख के बताओ, और इस कहानी को फिर से देखो, फिर से पढ़ो इंग्लिश में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।